Hi, this is Sunil Gupta. I welcome you all in my virtual classroom. We have taken one sum, that is sum number 8 from dissolution chapter. You will find same sum in your government textbook. Student, in today's class you are going to learn something new in dissolution chapter. Here you can see we are having one different adjustment. Here you can see Rajaram becomes bankrupt and rupees 1100 only was recovered from his state. दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो गया है ना, एक ये जो पार्टनर है राजाराम वो इनसॉल्वेंट हो गया है, वो बैंकक्रप्ट हो गया है, मतलब वो टोटली पूरी तरह से कंगाल हो गया है. तो बिजनेस को, पार्टनरशिप फर्म को, उसके पास से ओनली दिस मच अमाउंट इज रिसीव्ड और वी कैन से रिकवर्ड, इतना ही पैसा रिकवर्ड हुआ है उसके पर्सनल स्टेट से. ओके तो ये एक न्यू एडजस्टमेंट है, ये न्यू थिंग है दैट यू आर गोइंग टू लर्न इन दिस क्लासरूम. So I hope you will be watching this video till end. So let's start. Sitaram, Gangaram and Rajaram are partners sharing profit and losses in the ratio of 4:2:3. On 1st April 2019, they agreed to dissolve the partnership firm. They agreed to dissolve the partnership. Their balance sheet was as follows. These are the liabilities. Wherever you will be putting it, put it on credit side. And these are the assets. Wherever you will be putting it, put it on debit side. Right? तो हमको ये पूरा बैलेंस शीट ट्रांसफर करना है. बैलेंस शीट में से एक भी आइटम बैलेंस शीट में नहीं रखना है. एंड दीज आर द एडजस्टमेंट्स. हियर यहाँ पे वो दिया हुआ है जो कि आपको प्रिपेयर करना है. शो रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट, capital account of the partners. You can see here already I have prepared everything in advance. We need a realization account, we need partners capital account, we need bank account, right? So student, without wasting any time, let's start the sum. Capital account में these three will be transferred to partners capital account credit side. आओ देखते हैं कि इसके कैसे ट्रांसफर करें. देखो यहाँ पे क्रेडिट साइड में will write by बैलेंस, क्या लिखेंगे यहाँ पे, ब्रॉड डाउन लिखेंगे, राइट? और यहाँ पे आएगा 65,000 एंड हियर इट विल कम 45,000. यहाँ पर आ जाएगा लास्ट का पार्टनर का कैपिटल है 7,000. सो हियर 7,000. ओके डन, अंडरस्टूड दिस मच. फिर उसके बाद रिजर्व फंड विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स इन देयर रेशियो 4:2:3. कितना है 18,000. इस तरह से 18,000 is reserve fund. 4:2:3, right? So 4/9. Same way 2/9. We'll check the total. It should be 18,000. Yes. Next, profit or loss. This also will be distributed among partners 5,400 in this ratio 4:2:3 by profit and loss account. 5,400 into 4/9. 5,400 into 2/9. 5,400 into 3/9. And the total should be 5,400. Yes. Then these three items will go to credit side of realization account. So I'll take it
This is the credit side of realization account. Here I'll write by sundry assets लिखते हैं, sundry liabilities, and below that we'll write those items. We'll write first loan from Tukaram. Loan from Tukaram is 10,000. Then we are having creditors. Creditors का amount है 12,000. और फिर है bills payable जिसका क्या amount है 4,600. And the total is to be taken in outer column 26,600. You can see here balance sheet items are over. Now asset side. These items are to put in debit side of realization account. तो कैसे start करेंगे? Look here. In debit side, we'll make a head and we'll write sundry assets. उसके नीचे building. How much? Building is 55, machinery 25. Then furniture 12, investment 15. Next, bills payable 3.5, 3,500, debtor 21,000. Right, debtors 25,000. Bills receivable 3,500, debtors 25,000, stock 28,000. Stock 28,000. Total of this is to be taken in outer column 1,63,500. Okay, so we have taken total in outer column. We'll check at once all the amount. Building 55,000, machinery 25,000. Building 55,000, machinery 25,000. Furniture 12,000, 15,000. 12,000, 15,000. 3,500, 21,000. 3,500, 21,000. Stock 28,000. So we are getting now 1,59,500. Okay, next we are having this cash in hand. So what we'll do, we have already opened bank account, right? So वैसे भी बिजनेस बंद होने वाला है, तो ये क्या करेंगे हम लोग, बैंक अकाउंट का डेबिट साइड में ये बैलेंस लिखेंगे, बाय बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, and in that this amount will deposit into bank 5,500. First of all we'll do this. Here I'll write first bank balance. That means how to write that bank balance? To balance brought down, amount is 2,000, and I'll deposit the cash to cash account. I'll deposit cash is 5,500. Cash is deposited into bank now.
Now we'll start with the adjustments. Remember, every adjustment should have minimum how many effects? Two effects. So assets are realized. That means money, we have received money. Partnership firm has received money. So bank account debit side and realization account credit side. I'll write here first by bank account. In that I'll write these assets what are realized. I'll write first building 46,750, 46,750. Then machinery 18,550, machinery 18,550. Then we are having furniture 9,600, furniture 9,600. Investment 10,650, 10,650. Investment 10,650. Bills receivable and debtors. See, bills receivable and debtors together we have received 20,750. And 20,650. We'll check amount once again. 20,750. 20,750. Correct. And all the liabilities were paid off. First of all, we'll give second effect of these items, and total amount will take in order column 1,06,300. This is in credit side. Second effect will come over here on the debit side to realization account 1,06,300. Second effects are done. We'll go to the next adjustment. Here all liabilities were paid off. Chalo, let's pay the liabilities here. ओके लाइबिलिटीज का जब भी पेमेंट करना होगा फर्स्ट इफेक्ट यहाँ पर डेबिट में आएगा रियलाइजेशन के, और सेकंड इफेक्ट विल गो टू क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स, क्रेडिट साइड ऑफ बैंक अकाउंट. सो आई विल राइट हियर टू बैंक account we are going to make payment of liabilities. Here I can write assets are realized. So see, we'll take items from here. I'll copy paste. Okay, now go back to the question. सी विल टेक दिस ऑल्सो. ये भी एक पेमेंट है ना, तो हम लोग इसको भी ले लेंगे. सारे पेमेंट हम लोग एक साथ करेंगे. रिमेंबर, ध्यान में रखना, आपका टाइम बच जाएगा. जो भी पेमेंट रहेंगे करने रहेंगे वो सारे पेमेंट को एक साथ आप करिए. 800. ओके 800 ही है. टोटल इज 27,400 is paid, and here I'll write paid for liabilities and expenses. 27,400. Here it is in debit side. Second effect will go to credit side. I'll write here by realization account 27,400. Second effects are done. Now see here, Rajaram became bankrupt and rupees 1,100 only was recovered from his estate. तो चलो रिकवर कर लो बैंक अकाउंट का डेबिट साइड में. टू राजा
राम्स कैपिटल अकाउंट। चलो रिकवर्ड हो गया। सेकेंड इफेक्ट विल गो टू क्रेडिट साइड ऑफ राजाराम अकाउंट। ही हैज पेड बाय बैंक अकाउंट in Rajaram's column 1100. Everything is done. Now we'll close this account. Total of this side 1,86,900. 1,86,900, and this side total is 1,32,900. So this side is less. Okay. So what I'll do, दिस डेबिट साइड हाइयर है ना, तो हम लोग इसको सेम लाइन में दोनों जगह लिख देंगे, और डेबिट में से हम लोग ये जो क्रेडिट का लोअर है ना ये माइनस करेंगे। तो ये जो हायर अमाउंट है डेबिट साइड का 1,86,000 माइनस क्रेडिट साइड का टोटल 1,32,900, वी आर getting 54,000. Now this 54,000 will be divided among partner Rajaram, Gangaram and Sitaram. Here I'll write by partners capital account. This 54,000 will be divided among partners into their ratio we have divided. Check the total, it should be 54,000. Now second effect of this, here it is in which side is this? This is credit side. Second effect will go to debit side to the partners capital account. Here we'll write to realization account. स्टूडेंट ध्यान से देखना, ये सम एकदम सिंपल है, अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो you will understand everything. 24,000, 12,000, 18,000, 24, 12, 18, 24, 12, 18. अब देखो क्या करेंगे, ये पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया है, राइट। सो देखेंगे पहले इसका कौन सा टोटल हायर है। ये डेबिट साइड का 18,000 है और क्रेडिट साइड का टोटल है 15,900। तो हम लोग क्या करेंगे, मैं इसका टोटल लिख देता हूँ 15,900। तो मैं क्या करूँगा, ये 18,000 है ना जो हायर अमाउंट, वो मैं इस तरह से दोनों साइड में मैं लिख दूंगा एज यूजुअल, और ये 15,000 में माइनस करूँगा यहाँ पे 18,000 माइनस 15,900, तो मुझे कितना मिल गया 2,100। अब स्टूडेंट्स जैसे कि आपने क्वेश्चन में पढ़ा कि ये जो पार्टनर है ये तो इंसॉल्वेंट हो गया, इसके पास से इतना पैसा हमको आना वापस से बाकी हो चुका, मतलब बाकी है, आना बाकी और रिकवर करना है। अब क्योंकि ये इंसॉल्वेंट हो गया तो ये अब और भी पैसे नहीं दे पाएगा, है ना। हम लोग ने सिर्फ 1,100 ही रिकवर किया, इतना बाकी है। अब ये जो 2,100 है ना, ये रिमेनिंग पार्टनर बेयर करेंगे। तीसरा पार्टनर तो इंसॉल्वेंट हो गया ना, अभी वो कंगाल हो गया, इसके पास कुछ भी नहीं है, तो इसका जो ड्यूज है वो रिमेनिंग पार्टनर क्या करेंगे, शेयर करेंगे। तो कैसे शेयर करेंगे, इन देयर रेशियो। देखो मैं यहाँ पे लिख के आपको बताता हूँ, ये दोनों पार्टनर शेयर करेंगे ना, तो ये दोनों के अकाउंट में ही अमाउंट जाएगा। देखो मैं बताता हूँ कैसे। फर्स्ट पार्टनर कितना शेयर करेगा, 2,100 में से कितना शेयर करेगा, उसका शेयर जितना रहेगा उतना ही ना, ज़्यादा तो नहीं शेयर करेगा। हाँ, इनका रेशियो अभी चेंज हो जाएगा, 4:2 हो जाएगा, मतलब 4/6। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। अभी गंगाराम कितना शेयर करेगा, टोटल 2,100 है, उसमें से इसका शेयर है 2, कितने में से, 6 में से। चलो दोनों पार्टनर ने शेयर कर लिया। किसका अमाउंट था ये था अमाउंट, ओके। ये यहाँ पे नहीं लिखेंगे स्टूडेंट, ये है ना, आप इसी का कॉलम में लिखेंगे, सब वर्किंग 700। राजा राम के कॉलम में होगा, क्योंकि राजा राम का कॉलम भी टैली होना चाहिए ना। अभी ये 2,100 में रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। ये लो, राजा राम का अकाउंट टैली हो गया, ये हो गया 18,000। देखो 18,000 ये बराबर हो जाएगा, ठीक है।
अब यहाँ पे मैं लिखूंगा ये 7,000 हम लोग किसको देंगे, फर्स्ट पार्टनर कौन सा है, अच्छा फर्स्ट पार्टनर का 1400 था क्योंकि उसका शेयर ज़्यादा है ना, इसका 700 है, तो मैं ये 1400 किसको दूंगा, सीताराम को दूंगा बाय सीताराम्स कैपिटल अकाउंट, और ये 700 में किसको दूंगा, बाय गंगाराम्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब क्योंकि ये दोनों क्रेडिट में है यहाँ पे, इसका सेकेंड इफेक्ट में डेबिट में दूंगा, ये साइड में इसका आ जाएगा 1400 और इसका गंगाराम का आ जाएगा 700, और मैं यहाँ पे लिखूंगा राजा राम, क्योंकि देखो यहाँ पे राजा राम के कॉलम में ही है ना, इसीलिए राजा राम्स कैपिटल अकाउंट। अब हम लोग ये अकाउंट टैली करेंगे। अच्छा मैं पहले ये देखो इसका मैं हाईलाइट कर दूं आपको, ये ध्यान में रखना, और अब हम लोग चलो मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ फॉर योर बेस्ट अंडरस्टैंडिंग पर्पस। अब देखो ये दोनों का टोटल करेंगे, इसका टोटल कितना है 50,200, 50,200 और इसका टोटल है 12,700। सो कौन सा साइड हायर है, 50,200, दैट अमाउंट, दैट हायर अमाउंट विल बी रिटर्न ऑन बोथ द साइड। अब बैलेंस कैसे मालूम पड़ेगा, $50,200 माइनस 12,700, तो ये आ गया 37,500, और यहाँ पे देखते हैं इस सेट का टोटल कितना है, आई गेस ये सेट का ज़्यादा होगा, 1,05,400, तो 1,05,400 मैंने ऐसे यहाँ पे लिख दिया है। एक बार ज़रा इसका हम लोग बैलेंस चेक करते हैं। 65,000 स्टूडेंट, ये मेरे से 6 टाइप करना था तो मैंने 9 टाइप कर दिया मेरे कीबोर्ड से, 65,000, 75,400। अब ये अमाउंट हम लोग दोनों साइड लेके क्योंकि ये हायर अमाउंट है, $75,000 में से मुझे माइनस करना है क्या, 24,000 मुझे माइनस करना है, 24,000 मुझे माइनस करना है, और क्या माइनस करना है 1,400 बराबर है 75,400 टोटल, उसमें से 24,000 माइनस ये वाला और 1,400 ये भी माइनस, तो वी आर गेटिंग 50,000। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं रहेगा, डैश डैश आएगा, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बैंक अकाउंट, क्यों, क्योंकि बैंक अकाउंट टैली होना चाहिए ना, इसका बैंक में डालेंगे, जो भी सेटलमेंट है वो बैंक अकाउंट से हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिखूँगा फाइनल सेटलमेंट and second effect of these two item will go to this side. Here I'll write by partners capital account. First partner is Sitaram, Gangaram, राजा राम का तो कुछ भी नहीं रहा, राजा राम का तो टैली हो गया, तो बैलेंस ये सिर्फ 2 पार्टनर्स का बचा है 50,000 और 37,500।
ये आता है 87,500। अभी ये हम लोग आ गए कैश अकाउंट पे। ये साइड का टोटल है 1,14,900 and debit side total is yes 1,14,900. So students, in this way we have done this sum. आपने देखा अभी कैश अकाउंट टैली हो गया है। तो जिस वे से मैंने आपको बताया है आपको उसी वे में ये सम करना है। ओके स्टूडेंट्स, सो हियर आई हैव फिनिश्ड दिस सम एंड स्टूडेंट्स रिमेंबर ये इस वीडियो को आप रिपीट कर करके आप देखेंगे क्योंकि ये बाकी के सम से अलग टाइप है और आप जितनी भी बार इसको देखेंगे दैट मच यू विल अंडरस्टैंड बेटर देन बिफोर। नाउ इन दिस वे हियर आई विल वाइंड अप माय लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।